بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک سنسان راستے سے گزر رہی تھی جب ایک جوان لڑکی روتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ میں گھبرا گئی جب وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ پلیز میری عزت بچا لو، وہ مجھے پکڑ لے گا۔ میں جلدی سے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ لڑکی بہت پیاری بھی تھی۔ میں نے اسے گرم دودھ اور کھانا دے کر دوا دی۔ رات جب شوہر آیا تو اسے بتایا کہ میں نے اپنی دوست کی بہن کو گھر میں رکھا ہے کچھ دنوں کے لیے۔ شوہر نے کچھ نہ کہا، لیکن جب اگلے دن اس لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی تو میں ڈر گئی، لیکن باہر جاتے ہی ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ میرے شوہر کو دیکھتی ڈر رہی تھی اور میرا شوہر بھی ڈرا ہوا تھا۔ جب اچانک اس لڑکی نے مجھے اپنی کمر دکھائی، جسے دیکھتے ہی میں پتھر کی ہو گئی، کیونکہ میرا نام شگفتہ ہے۔ میں میٹرک میں تھی جب میرا رشتہ میرے چاچا زاد انس نے مانگا۔ چونکہ وہ لوگ امیر تھے تو میرے ابو نے ہاں کر دی، مگر میں اپنے اس کزن کو بالکل پسند نہ کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک مغرور لڑکا ہے، وجہ اس کا لیے دیے والا انداز تھا۔ ہمارے خاندان میں لڑکی کی رائے کو کچھ خاص اہمیت نہیں دی جاتی۔ ابھی رشتے کی بات چل ہی رہی تھی کہ ایک اور رشتہ آ گیا۔ ابو کے دوست کا بیٹا تھا۔ اس لڑکے کا نام حماد تھا، بہت میچور اور اچھا لڑکا تھا۔ میرا دل حماد کی طرف تھا، مگر چونکہ میرے ابو اپنے بھائی کو ہاں کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ اب حماد کے بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ حماد کو میں بہت پسند تھی، مگر وہ بھی بڑوں کے فیصلے کی وجہ سے خاموش تھا۔ حماد اپنے ابا کے ساتھ اکثر ہمارے گھر آتا رہتا تھا۔ ایک دن حماد کا فون آیا، کہنے لگا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کچھ بات کرنی ہے۔ میں نظر انداز کر کے جانے لگی۔ میں نے سختی سے حماد کو منع کیا کہ کچھ دن میں میری شادی ہے، آئندہ فون نہ کرے۔ شادی ہو گئی۔ میں دوسرے دن اپنے میکے ملنے آئی تو ماں نے دیکھا کہ میرا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ سونے کے گہنوں میں چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ میں نے بتایا کہ انس میرا بہت خیال رکھتا ہے، میری ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری کرتا ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا کہ میرے اندیشے غلط ثابت ہوئے۔ واقعی ماں باپ کے فیصلے اولاد کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ میں جو انس کو مغرور سمجھتی تھی، اب پتہ چلا تھا کہ وہ کتنا نرم دل اور محبت کرنے والا تھا۔ لیکن کچھ لوگوں کی قسمت میں خوشی نہیں ہوتی۔ شادی کو ابھی 2 مہینے ہوئے تھے جب ایک رات انس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ گیا۔ خوشیوں کے دن تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں۔ انس کے لیے ہر آنکھ اشکبار تھی۔ میں ایک ٹک بس انس کے چہرے کو دیکھی جا رہی تھی۔ کچھ دنوں میں ہی وہ شخص میرے لیے بہت قیمتی ہو چکا تھا۔ جوان موت نے انس کے والدین کی بھی غم سے کمر توڑ دی تھی۔ ان کا بھی یہ حال تھا، جسم میں جیسے جان ہی ختم ہو گئی تھی۔ تدفین کے بعد سب چلے گئے۔ بہت عرصے تک یہ حال رہا۔ میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ میرے ابا نے بہت علاج کروایا، تب جا کر میں ٹھیک ہوئی، مگر اداسی میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ سب میرا خیال رکھتے تھے، لیکن انس کے بغیر سب کچھ بے معنی تھا۔ انس کی طرف سے کافی جائیداد میرے حصے میں آ گئی، جس کی دیکھ بھال فی الحال میرا بھائی کر رہا تھا۔ زندگی آپ کو سمجھدار بنا ہی دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم بھی بدل ہی جاتے ہیں۔ میں بھی سمجھدار ہو گئی۔ میرے گھر والے مسلسل مجھے شادی کا کہہ رہے تھے، مگر جب بھی گھر والے شادی کی بات کرتے، میں اپنے بال نوچتے لگتی اور غصہ کرتی، اس لیے سب چپ کر جاتے۔ حماد نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ پھر ایک دن حماد کا رشتہ پھر سے میرے لیے آیا، مگر میں نے سختی سے منع کر دیا کہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ گھر والوں کے اصرار سے میں تنگ آ گئی تھی۔ ایک دن میں سہیلی کے گھر جا رہی تھی جب سامنے مجھے حماد آتا دکھائی دیا۔ میں وہیں کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگا مان جاؤ، مجھے دکھ ہوتا ہے تمہیں اس طرح دیکھ کر۔ اتنی پہاڑ جیسی زندگی تم اکیلے کیسے گزارو گی؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اسی لیے میں نے تمہاری شادی کے بعد بھی گھر نہیں بسایا۔ بار بار ابا کو بھیجا، لیکن تمہارے گھر والے کہتے ہیں کہ تم مانتی نہیں ہو، اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ تم سے رابطہ کروں۔ میرے دل کو امید تھی کہ شاید تم مان ہی جاؤ۔ میں نے کہا دل میں اب کسی کے لیے جگہ نہیں، تم سب لوگ مجھے مجبور مت کرو۔ اس نے دکھی نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا آپ کا شکریہ، میں چلتا ہوں۔ حماد کے جانے کے بعد بوجھل قدموں سے اپنی سہیلی کے پاس آ گئی، لیکن میرا دل اس وقت بھی انہی سوچوں میں تھا، میں کیا کروں؟ اب سب لوگ میرے پیچھے شادی کی بات کو لے کر پڑ چکے تھے۔
मेरी सहेली मेरा वाहिद सहारा थी जिससे मैं हर बात शेयर कर सकती थी। एक दिन पता चला कि वो मज़ीद तालीम के लिए बाहर जा रही है। मैंने उसे कॉल की, उससे गिला भी किया, लेकिन सब मेरे जैसे तो नहीं होते जिन्हें मुस्तकबिल की फ़िक्र नहीं होती। मेरी सहेली को कुछ बनना था, वो शुरू से ही काबिल तालबा थी। उसके जाने के दिन मैं उससे मिलने गई तो उसने कहा, तुमसे राब्ते में रहूँगी। हमने नम आंखों के साथ एक दूसरे को गले लगाया। उस दिन मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी। वो मुझे हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन करती थी। पहले तो कुछ अरसा उसके फ़ोन आते रहे, फिर वो सिलसिला भी बंद हो गया। शायद मेरी किस्मत में यही था, हर मोहब्बत करने वाला रिश्ता मुझसे दूर था। घर वालों को भी गिला था कि मैं उनकी नहीं मानती। मैं ज़िंदगी के और झमेलों में पड़ गई। कभी कभी अंश की याद आती तो इसके लिए दुआ कर देती। फिर एक दिन मुझे एक कॉल आई। वो कॉल हमाद की थी। उसने बताया कि उसके वालिद की तबीयत ख़राब रहती है और वो चाहते हैं कि अपने बेटे की खुशी देख लें, और तुम जानती हो मेरी खुशी तुम ही हो। हमाद ने मुझे कहा कि जो मैं कहूँ वो करने के लिए तैयार है, बस मैं इससे शादी कर लूँ। मैं घर वालों के रवैये से भी परेशान थी, इसलिए सोच लिया कि उसकी बात मान लेनी चाहिए। और फिर घर वालों की मौजूदगी में मेरा निकाह हमाद से हो गया। हमाद बहुत खुश था, जैसे उसकी सबसे बड़ी खुशी पूरी हो गई हो। हमाद एक डॉक्टर था, शाम को एक क्लिनिक पर बैठता था। मैं दूसरे तीसरे दिन अपने मैके आ जाती थी। माँ के साथ कुछ वक्त गुजार कर सुकून मिलता था। एक दिन हमाद ने कहा कि वो शाम को वापसी पे मुझे ले जाएगा, लेकिन शाम को उसकी कॉल आई कि इमरजेंसी में एक मरीज़ आ गया है, इसलिए नहीं आ सकता। तुम रिक्शा ले लो या अपने भाई से कहो कि तुम्हें छोड़ जाए। मेरा भाई एकेडमी में था। मैंने सोचा खुद ही चली जाती हूँ। रिक्शा न मिला, मैं पैदल चलने लगी। कुछ दूर पक्की सड़क थी, वहाँ से रिक्शा मिल जाता था। मैं तेज़ तेज़ चलने लगी। मैं एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी जब एक जवान लड़की रोती हुई मेरे पास आई। उसके माथे से खून निकल रहा था। मैं घबरा गई जब वो मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्लीज़ मेरी इज्जत बचा लो, वो मुझे पकड़ लेगा। मैं जल्दी से इस लड़की को अपने साथ ले गई। वो लड़की बहुत प्यारी भी थी। मैंने उसे गर्म दूध और खाना देकर दवा दी। रात जब शौहर आया तो उससे बताया कि मैंने अपनी दोस्त की बहन को घर में रखा है कुछ दिनों के लिए। शौहर ने कुछ ना कहा, लेकिन जब अगले दिन उस लड़की के चीखने की आवाज़ आई तो मैं डर गई। लेकिन बाहर जाते ही होश उड़ गए, क्योंकि वो मेरे शौहर को देखती डर रही थी और मेरा शौहर भी डरा हुआ था। जब अचानक उस लड़की ने मुझे अपनी कमर दिखाई, जिसे देखते मैं पत्थर की हो गई, क्योंकि कमर पे जख्मों के निशान थे। इस लड़की ने कहा कि मैं खुद को तमाम बंधनों से आज़ाद समझती थी और ये भूल ही हो गई कि इंसान की कुछ हदूद है। यहाँ हर लड़की को दूसरों पर भरोसा करने की खता की सज़ा भी मिलती है। इस सज़ा का एहसास मुझे उस दिन हुआ जब पता चला मैं टोनी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैंने इस कैफियत का इजहार अपनी एक सहेली से किया तो उसने कहा, मैंने तुम्हें कहा था इस टोनी पर भरोसा मत करना। लेकिन मुझे टोनी बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं भूल गई वो मगरबी माहौल का लड़का है जिसके नज़दीक औरत की इज्जत की वैल्यू नहीं होती। 3-4 लड़कियों ने मुझे खबरदार किया था कि टोनी अच्छा लड़का नहीं, ये लड़कियों को अपना आदी करता है और फिर नशे का आदी कर देता है। मैं पागल उसकी बातों में आ गई। नशे की हालत में अंधी हो जाती थी और फिर उसकी सज़ा मुझे मिली। मैंने वालिदैन की इज्जत को मट्टी में रोल दिया और कुदरत ने मुझे मट्टी में रोल दिया। मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी इस टोनी ने। मैं अपनी इज्जत खो चुकी थी और मेरे पेट में उसका नाजायज़ बच्चा पल रहा था जिससे मुझे जान छुड़वानी थी। लेकिन जिसके पास भी जाती सब डॉक्टर यही कहते, एक तो ये गैर कानूनी काम है, दूसरा मेरी जान को ख़तरा है। एक दिन मेरी सहेली ने कहा कि डॉक्टर हमाद के पास चली जाओ, वो तुम्हें अच्छा मशवरा देंगे और तुम्हारी इस मुसीबत से जान भी छुड़वा देंगे। मैं उसके पास गई जिसने मुझे अजीब नज़रों से देखा। मैंने चेहरे से ही पहचान लिया कि मैं क्यों इसके क्लिनिक में दाखिल हुई हूँ। मुझे देखकर यूँ मुस्कुराया जैसे पहले से जानता हो। मैंने शर्मिंदा से लहजे में कहा, मैं इस मसले के लिए आई हूँ। कहने लगा, मैं समझ गया हूँ। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी, लेकिन एक डॉक्टर को ये ज़ेब नहीं देता था। लेकिन मैं मजबूर थी, मुझे इस मुसीबत से निकलना था, इसलिए खामोशी से सब कुछ सुनना मेरी मजबूरी थी। कहने लगा, मैं ऐसा काम करने तो नहीं देता अपने अस्पताल के स्टाफ को, लेकिन जिस लड़की ने तुम्हें भेजा है उससे मना भी नहीं कर सकता। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जैसा कहूँ वैसा करना होगा। अगर मेरा मूड बिगड़ गया तो इनकार कर दूंगा। तुम जानती हो कि इसका नतीजा क्या होगा। मैंने हैरत से इस डॉक्टर को देखा
जो मुझे ही देख रहा था। कहने लगा घबराने की कोई बात नहीं और बड़े प्यार से बोला, तुम्हारी खूबसूरती पर तरस आता है, वरना मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। ये जुर्म है, अगर मैंने ऐसा काम किया तो जेल चला जाऊंगा। मैं डरता सिर्फ इसलिए हूँ कि ये काम कानून के खिलाफ है। मुझे लगा कहीं डॉक्टर मना ही ना कर दे, क्योंकि वो बार बार कानून से डरने की बात भी कर रहा था। मैंने उठकर उसके घुट्टे पकड़ लिए और मेरे आंसू निकल आए। मैं मिन्नत समाजत करती रही, मैं तबाह हो जाऊंगी, मेरे वालिद तो खुदकुशी कर लेंगे और मेरे भाई मुझे जिंदा दफन कर देंगे। उसने मुझे कहा कि फिक्र मत करो, तुम्हें तबाह नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं समझ गई थी कि ये डॉक्टर मुझे अच्छी लड़की नहीं समझ रहा और खुद भी ये कोई बाकिरदार शख्स नहीं था। मैंने अपनी उसी सहेली को डॉक्टर की करतूत बताई, मगर मेरी सहेली ने कहा, तुम्हें वहम है, डॉक्टर अच्छा शख्स है, तुम्हें हर किसी पर शक की आदत है। एक दिन मुझे वही शख्स नजर आ गया जिसकी वजह से मैं इस मुसीबत में फंसी थी। मैंने कहा कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, अब मुझसे शादी करो, नहीं तो सारे ज़माने को तुम्हारी करतूत बता दूंगी। कहने लगा, तुम जिस के साथ कारों में और होटलों में जाती रही थी, इनसे भी पूछो जाकर, पता नहीं किसका बच्चा है और मेरे पास आ गई हो। उसने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। घर आई तो मेरी माँ ने मेरी हालत देखी तो फिक्रमंदी से मुझे पूछा। वो भी शायद सब कुछ समझ गई थी, लेकिन मेरी माँ को सियासत से फुर्सत नहीं थी कि अपनी बेटी को देखती। शायद मेरी माँ ने दिल ही दिल में एतराफ़ कर लिया था कि बेटी को इस साल तक पहुँचाने में मेरा भी हाथ है। मैंने माँ को ये भी कह दिया कि जहाँ रिश्ता पक्का हुआ है वहाँ दिन मुकर्रर कर दो और कोशिश करो कि जल्द अज जल्द शादी हो जाए। ये मेरा वही कज़न था जो मुझे एक आँख नहीं भाता था। मेरे गुनाहों ने मुझे मजबूर कर दिया और मैंने दिल में तय कर लिया कि इस लड़के को हर सूरत कबूल कर लूँगी। मगरिब के कल्चर पर लानत भेजी और सोच लिया कि शौहर को सब कुछ सच बताकर माफ़ी मांग लूँगी और आइंदा साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारूँगी। मेरे गुनाहों ने मुझे झंझोड़ कर बेदार कर दिया था। मेरी माँ ने जब मेरा फैसला सुना तो बहुत खुश हुई। माँ ने वालिद को असल बात तो बता दी, मगर ये खुशखबरी सुना दी कि बेटी शादी के लिए राज़ी हो गई है। वालिद ने फ़ौरन जाकर दिन मुकर्रर कर दिए। मैं 10 दिन तक घर से न निकली। मैं नशे की भी आदी थी। कहते हैं कि ये नशे नहीं छूटते, लेकिन मेरा तजुर्बा बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। सिर्फ इरादा किया था और नीयत की थी कि मुझे इससे निकलना है। मैंने जो ठोकर खाई थी वो मुझे राह राज पर ले आई थी, मगर एक ये डॉक्टर था जो सीधे रास्ते की दीवार बन गया। अगर वो मेरा केस लेने से इनकार कर देता तो मुझे अफसोस ना होता, लेकिन ये मुझे मिलने के लिए कह रहा था। कहने लगा कि सिर्फ इस गुनाह की वजह से तुम शादी मत करो, बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन ये शादी ऐसी होगी कि तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलेगा। जब मैंने इनकार किया तो ये मुझे ब्लैकमेल करने लगा। उसने मुझे धोखा दिया और मेरी मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाया और मेरे वालिद को सब कुछ बता दिया। मेरे मंगेतर को भी बता दिया कि मैं एक बदचलन लड़की हूँ। उसने शादी से इनकार कर दिया। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मारा। मेरे भाई मुझे मार देना चाहते थे। मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से जान बचा कर भागी थी। मेरे दिल में इंतकाम की आग थी। मैं इस डॉक्टर को तबाह करना चाहती थी। एक बार तो दिल में आई कि डॉक्टर के घर का पता मालूम करके इसकी बीवी को बताऊं कि तुम्हारा शौहर डॉक्टर नहीं लुटेरा है, इज्जत का लुटेरा है। मगर मेरे गुनाह मुझे शर्मसार कर देते थे। लेकिन आज मैं खुद ही आपसे टकरा गई। वो लड़की सब कुछ बताकर अब बुरी तरह सिसक रही थी। मेरा शौहर सर झुकाए खड़ा था, जिसे मुझसे मोहब्बत का दावा था, और उसका किरदार इतना घटिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा शौहर ऐसा भी हो सकता है। ये हमाद तो नहीं था जिसे मैं जानती थी। इसका तो चेहरा बहुत मकरूह था, बहुत भयानक था। हमाद ने कहा कि वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। वो बहक गया था। कहने लगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हारे घर वालों को भी समझा लूँगा, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। वो लड़की खामोश थी और मुसलसल रो रही थी। मैंने कहा, ये लड़की तुम्हें माफ़ कर भी दे हमाद, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तुम एक घटिया शख्स हो। मैं तुम्हें क्या समझी और तुम क्या निकले। मैंने इस लड़की को साथ लिया और अपने पहले शौहर की तरफ से जो घर मेरे नाम था वहाँ शिफ्ट हो गई। हमाद कई बार आया, माफ़ी मांगता रहा, लेकिन मैं अब उसे माफ़ नहीं कर सकती थी। उस दिन मैंने सोचा था कि हम इंसान कितने अहमक होते हैं, हमें लोगों की पहचान नहीं होती। मैं कितने साल तक अंश को मगरूर समझकर उसे शादी से इनकार करती रही और इसी हमाद को अच्छा समझती रही। लेकिन अंश से शादी के बाद पता चला कि वो कैसा शख्स था, जिसे रिश्तों की इज्जत और मुकाम पता था। इतना
इतना अमीर था लेकिन उसके साथ में गरूर तक नहीं था। वो लोगों की बहू बेटियों को भी अपने घर की औरतों की तरह इज्जत करता और जिस हमाद को मैं अच्छा समझती रही वो धोखेबाज और घटिया निकला, जिसने एक मजबूर लड़की की मजबूरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश की और न जाने कितनी ऐसी लड़कियों को बर्बाद किया होगा। मुझे अब इस पर भरोसा नहीं था। मैं अब उससे नफरत करने लगी थी। रात का वक्त था, मैं सो रही थी जब अचानक मुझे इस लड़की की आवाज़ आई। मैंने देखा तो ज़मीन पर लेटी दर्द से करा रही थी। इसके मुंह से खून की उल्टी आई थी। मैं डर गई, उससे पूछा कि ये सब क्या है और तुम कब से इतनी बीमार थी। उसने दर्द में भी मुस्कुराते हुए नकाहत से उठते हुए कहा, मुझे जो बीमारी है लास्ट स्टेज पर है। मैं कुछ दिन की मेहमान हूँ, मौत का इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। उसने नकाहत से साइड टेबल से रिपोर्ट्स निकाली जिन्हें पढ़कर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैं उसके गले लगकर रोने लगी। वो भी रो रही थी और कहने लगी, मैं अपना आखिरी वक्त अपने घर वालों के साथ गुजारना चाहती हूँ लेकिन ये मुमकिन नहीं है। मैं इस काबिल नहीं हूँ इस इज्जतदार घराने की बेटी कहलवा सकूँ। वह फूट फूट कर रो रही थी। मैंने रोते हुए उसको गले लगाया और हम दोनों फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे अचानक एहसास हुआ जैसे वो बेजान होती जा रही है। मैं उससे देख कर डर गई और जल्दी से हमाद को कॉल की। मुझे इस वक्त लगा वही कुछ कर सकता है, हालांकि मैं ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे इस वक्त इस लड़की की जान बचानी थी। थोड़ी देर में हमाद एम्बुलेंस के साथ आ गया और हम इस लड़की को अस्पताल ले आए। इसके घर वालों को हमाद ने कैसे बुलवाया और क्या कहा पता नहीं, लेकिन मैंने देखा एक बूढ़ा शख्स और एक औरत पिछले 1 घंटे से बैठे रो रहे थे। मैं उनके साथ बैठ गई और उन अम्मा जी को तसल्ली दी तो कहने लगी, हम तो समझे थे ये मर गई होगी, हम तो सब्र कर चुके थे, लेकिन आज फिर से इसे मरता देखने को हम जिंदा हैं। ये हमारी इकलौती बेटी है, 5 भाइयों की इकलौती बहन। हमने इसे आज़ादी दी, बस यही हमारी गलती है। और उसने इस आज़ादी में हर हद पार कर दी। नशा करने लगे, लड़कों से दोस्तियाँ, घूमना फिरना। हमने जब समझाया तो उसने घर छोड़ दिया। इसलिए हम नहीं समझते कि सिर्फ डॉक्टर हमाद का कसूर है। जब लड़की खुद चारा साबित हो तो मर्द भेड़िया ही बन जाता है। डॉक्टर हमाद ने हमसे माफ़ी मांगी थी। वो इस लड़की को ब्लैकमेल करता रहा, लेकिन इस वक्त ये घर लौट चुकी थी। डॉक्टर हमाद भी इस गुनाह में हाथ रखने से बच गया। वो कसूरवार होगा, लेकिन अकेला वो कसूरवार नहीं। हमारी बेटी भी है जिसका मगरबी लिबास और फैशन की आड़ में खुद को मॉडर्न कहना, खुद दावत देता है लोगों को कि आओ देखो मुझे, मैं चलती फिरती दावते गुनाह हूँ। इसलिए तो पर्दे को और बेटी की तरबियत को बहुत सी बातों को देखते हुए करना चाहिए। काश मैं अच्छी माँ साबित होती, इसे इस दलदल में जाने ना देती, उसे वक्त देती तो आज ये यहाँ इस हाल में ना होती। वो औरत अब रो रही थी। जब वो बूढ़ा शख्स जो इस लड़की का बाप था बोला, जितना रोना है रो लो, अब क्या फ़ायदा, तुमने और तुम्हारी बेटी ने तो मुझसे रोने का हक भी छीन लिया। रोऊंगा तो लोग कहते हैं कि कमज़ोर मर्द है, घर की औरतों को संभाल नहीं सका, अब रोता है। इसी वक्त डॉक्टर्स कमरे से बाहर आई और बताया कि बच्चा बच गया है, लेकिन वो लड़की नहीं बच सकी। मैंने हैरत से और दुख से अपनी चीख को रोका था। अभी कल ही तो बिल्कुल ठीक थी। ज़िंदगी इतनी गैर यकीनी और मुख्तसर सी चीज़ है। इस दिन मैंने अपनों से बिछड़ जाने के दर्द को महसूस किया था। वो जैसी भी थी, लेकिन अपने पीछे रोने वालों को छोड़ गई थी। इसमें कसूर जिसका भी था, लेकिन एक लड़की अपनी जान से चली गई थी और बहुत सी नस्लों में कसूरवार भी थी। एक और गुनहगार इस दुनिया में उसकी कोख से जन्म ले चुकी थी, जिसे मैंने गोद ले लिया। और इस राज को राज रखने के लिए यही कहा गया कि माँ और बच्चा दोनों मर गए थे, और वो मर्द जिनकी वजह से सब हुआ था मुआशरे में अपना मुकाम पे थे, क्योंकि इस लड़की के घर वाले खुद को और इस लड़की को कसूरवार कह के खुद ही इस मर्दों के मुआशरे को माफ़ कर चुके थे। इस लड़की को फोत हुए 10 दिन होने वाले थे, लेकिन मेरे जहन से एक वो लम्हा नहीं निकलता था। मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे घर वाले मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे। एक दिन मेरी माँ आई और कहने लगी कि हमाद को माफ़ कर दो, वो शर्मिंदा है। मैंने माँ को देखा और पूछा, अगर अब्बा होते हमाद की जगह तो क्या आप अब्बा को माफ़ कर देती? माँ ने मेरी तरफ देखा और बोली कि हाँ कर देती, क्योंकि मैं एक औरत होकर भी यही समझती हूँ कि मर्दों को बहकाने में औरतों का हाथ है। अगर हम ठीक हैं, पर्देदार हैं, अपनी हदूद जानती हैं, तो किसी मर्द की हिम्मत नहीं कि वो किसी औरत को नवाला बना ले। औरत अगर बाकिरदार हो, पारसा हो, तो हर मर्द उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाता है। मैंने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली तो यही तय था कि हम औरतें ही समझौता करें,
दूसरे दिन मैं अपने ससुराल आ गई। हमाद ने कुछ नहीं कहा था, ना कोई वजाहत, ना माफ़ी, ना मुझे ज़रूरत थी। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, यही मेरे बस में था। शादी के 3 साल बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया और यही फैसला किया कि इसकी तरबियत ऐसे करूँगी कि उसे अपनी हदूद और इज्जत का पता हो, जहाँ से गुजरे लोगों की नज़रें खुद ब खुद झुक जाएं। मैंने इस लड़की की बेटी को भी अपनी बेटी की तरह ही समझा। दोनों आज तक नहीं जानती कि सगी बहनें नहीं हैं। मैं नहीं चाहती थी कि इस लड़की की माँ के गुनाहों की सज़ा उससे मिले, इसलिए हमाद से कहा कि वो भी कभी इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेगा कि इस लड़की की बेटी रिमशा हमारे पास है। रिमशा से मुझे इतनी ही मोहब्बत थी जितनी अपनी बेटी से थी। मेरी बेटी और रिमशा अक्सर ही लड़ती रहती थी और मैं हमेशा रिमशा की साइड लेती थी और हमाद हमारी बेटी को ही सही समझता। मैं अक्सर कहती कि ये ठीक नहीं, रिमशा को लगता है कि हम लोग उससे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन हमाद की लॉजिक थी कि रिमशा की साइड लेने को तुम ही काफ़ी हो। रिमशा अब ज़िद्दी होती जा रही थी, बात बात पे बहस करने लगी थी। मैं बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन हमाद उसे डांट देता। वो अब यही करती थी कि बातें हमसे छुपाने लगी थी। नवी के पेपर्स हो रहे थे जब मेरा भांजा जॉब के सिलसिले में हमारे घर आया था रहने। इसके दफ्तर से हमारा घर करीब था। मैंने और हमाद ने कहा कि वो हमारे साथ यहीं रहे। मेरा भांजा बहुत ही संजीदा तबीयत का लड़का था। मेरी बेटी और मेरा भांजा देर तक किसी मौजू पर बात कर रहे थे। जब मैं आई तो किसी बात पर लड़ने लगे। मेरी बेटी ने कहा कि मैं मामा को बता दूंगी, रिमशा तुम्हें कॉल करती है। मेरे तलवों से ज़मीन निकल गई। मुझे देखते ही मेरी बेटी ने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन मैंने उससे कहा कि वो कमरे में जाए और अपने भांजे से कहा कि क्या बात थी, रिमशा क्यों कॉल करती है तुम्हें। उसने मुझे कहा कि पुप्पू आप वादा करें, उससे कुछ नहीं कहेंगी, वो बच्ची है। लेकिन मैं बच्चा नहीं हूँ। इस उम्र में हम दूसरों से इम्प्रेस हो जाते हैं और इस अट्रैक्शन को मोहब्बत समझने लगते हैं। आप फिक्र नहीं करें, मैं उससे समझा चुका हूँ, लेकिन मैं फिक्रमंद कैसे ना होती। मुझे सारी रात नींद नहीं आई, मैं इसी बारे में सोचती रही। अगली सुबह फजर के वक्त जब मैं नमाज के लिए रिमशा को जगाने गई तो वो रो रही थी। मुझे देखते ही मुझसे लिपट गई और बोली, मामा आपका भांजा मुझे इग्नोर करता है। पहले बातें करता था मुझसे, अब उसने मुझे कहा कि मैं कॉल न करूं। मैंने इस वक्त उसे प्यार से समझाया कि रिमशा जब तक तुम कज़न थी वो बात करता रहा, तुम्हें बच्ची समझ के तुम्हारी बातें सुनता था, लेकिन जब उसे लगा कि तुम उसे सिर्फ कज़न नहीं समझती तो वो सिर्फ कज़न ही बन गया। इसलिए समझ जाओ, वो तुम्हें समझा रहा है। लेकिन उस दिन मैंने एक सर्किश लड़की देखी जिससे सिर्फ अपनी ही करनी थी। उसने कमरे की चीज़ें तोड़नी शुरू कर दी। कहने लगी, आप तो चाहती यही हैं, आपको और पापा को मुझसे मोहब्बत ही नहीं, आप लोग छोटी को ही अच्छा समझते हैं और आपका भांजा भी उसकी तारीफ़ें करता है। उस दिन मेरा हाथ उठ गया और मुझे शिद्दत से महसूस हुआ कि खून की वाकई ज़ुबान होती है, ये कहीं ना कहीं अपना आप दिखाता है। रिमशा ने मेरे भांजे में दिलचस्पी लेके गलत किया या नहीं वो अलग मसला था, लेकिन इसका इतनी सी उम्र में ये कहना कि उसकी बहन ही इससे की वजह है और कम उम्र में इन झंझटों में पड़ जाना। मैंने हमाद को बता दिया इन बातों का। मेरे भांजे को भी पता चल गया और वो कहीं और शिफ्ट हो गया। उसने रिमशा का नंबर ब्लॉक कर दिया। बात को 2 साल गुजर गए। रिमशा पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। एक दिन मेरे उसी भांजे का रिश्ता आया, लेकिन रिमशा के लिए नहीं, मेरी छोटी बेटी के लिए। मैं हैरान थी लेकिन खुश भी थी कि चलो एक बेटी तो अपनों में चली जाएगी। हमाद से बात करके मैं जवाब देती। इससे पहले ही रिमशा कमरे में आई और बोली कि मैं ना कहती थी कि आपका भांजा मेरी छोटी बहन में दिलचस्पी ले रहा था, इसीलिए उसने 2 साल बाद उसी के लिए रिश्ता भेजा। मैंने उससे कहा कि ये बड़ों की बातें हैं, तुम इस सब से दूर रहो, लेकिन मैं भूल गई कि वो मेरी बेटी नहीं थी, वो तो उस लड़की की बेटी थी जिसने अपने वालिदैन को पीछे छोड़ दिया था और अपनी अलग ही दुनिया बनाने निकली थी और बर्बाद हो गई थी। मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कैसे करती। रिमशा ने इस बात को अना का मसला बना लिया और मैंने अपने भांजे से बात की कि रिमशा भी तो मेरी बेटी है, तुम उससे शादी कर लो। लेकिन उसने जो कहा मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि वो किसी नाजायज़ औलाद से जायज़ रिश्ता नहीं जोड़ सकता। मैं हैरान थी, तो क्या सिर्फ यही वजह थी रिमशा को इग्नोर करने की? मैंने अपने भाई से बात की, उनकी भी यही मर्जी थी। मैंने जवाब दे दिया और कहा कि दोनों मेरी बेटियां हैं, अगर किसी ने दोबारा ये बात की तो हर रिश्ता तोड़ दूंगी। रिमशा कनाडा चली गई आला तालीम के लिए और एक दिन फ़ोन आया कि वहीं किसी मुसलमान लड़के से उसने शादी कर ली। हमाद ने उस घर के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए।
میرے بھائی نے پھر سے مجھ سے میری بیٹی کا ہاتھ مانگا، لیکن اس بار میں انکار نہیں کر سکی۔ آج بھی مجھے وہ پیاری لیکن بدنصیب لڑکی بہت یاد آتی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ تمہاری بیٹی کا بہت خیال رکھا، اپنی ذمہ داری پوری کرتی تھی۔ بس یہ دعا ہے کہ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے اور اللہ ہر بیٹی کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ ماؤں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ صرف بیٹی کی نہیں، بیٹی کی تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ اسے پتہ ہو ہر لڑکی کی عزت اتنی ہی اہم ہے جتنی میری بہن کی عزت مقدس ہے۔ جو اپنی بہنوں کی عزت کرتے ہیں وہ دوسروں کی بہنوں کی عزت مٹی میں نہیں ملا سکتا۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔